Hello, my dear friends. This is your friend C. Jatin Agarwal, and I welcome you to the Stipend to Salary series. So, today we have rankers of November 24. First one, CA Asta Agarwal, who secured AAR 6 in CA finals, AAR 17 in CA intermediate, and secured 87.25% in CA foundation. Asta, as a person who's a cool and calm person, and talking about Harshit, he secured AIR 43 in CA finals, even though he didn't secure any AIR on a CA intermediate. And and Harshit is better known as a person who love to work during articleship and love to have fun. And even though he's secure, he's a All India ranker also, right? So we would have a brief introduction from themselves, that brief introduction about their journey till date. So let's start with Asta. So hello Asta, Uh, please start. hello, Jatin. Recently, as Jatin Bhai said, I secured AIR 6. Currently feeling over the roof. Everybody is feeling proud. So far as my schooling is concerned, I did my schooling from Jaipuria Vidyalaya till 10th standard. After that, 11th and 12th, I did from Bharatiya Vidya Bhavan Vidyashram, Jaipur itself. My articleship was done from Kalani and Company. So far as my hobbies are concerned, I like sketching. I also have an art account if you'd like to follow it. I like dancing, I like traveling, and I'm really excited to join this interview. Thank you, Jatin Bhai, for inviting me. Thank you so much. Please name your channel also so that everyone can follow. Follow this If you channel. want. Do like, subscribe, So share. My channel so name is Astha_sketches on Instagram. thank you. So Harshit, please. Hi guys, my name is Harshit. I secured on the rank 43. As Jatin Bhai said that I scored good marks in my foundation and intermediate, but could not able to score all India rank in that. Uh, as far as what I like is I like playing badminton. I used to play tennis too, lawn tennis. I was a professional player, state level player in my school timings, school timing. But due to my knee injury, I stopped that playing, and Okay. I like working in So the office, so as you Harshit, it know. is quite interesting story. तो आप ये अपनी स्टोरी चाइल्डहुड से बताइए कुछ, कि आपने जतिन भैया कैसे सीए ज्वाइन करा और क्या हम्म प्रोसेस रहा. जतिन भैया, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरा सीए करने का कोई प्लान था ही नहीं पहले तो. आई वांटेड टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट. मैंने उसी वजह से मेरी 11th और 12th में भी मेरे पास इंटरनेशनल बोर्ड था, सीबीएसई नहीं था, तो मेरे इसी वजह से रिजल्ट्स वगैरह भी डिले आए थे. मैं बताऊंगा आगे. तो मेरा कोई प्लान नहीं था सीए करने का. मेरे घर पे हैं कुछ लोग सीए, बट एज सच कोई प्लान था नहीं सीए करने का. जब मेरे 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए, तब मैंने अप्लाई वगैरह कर रखा था बाहर, तो वहां से एक्सेप्टेंस वगैरह भी आई थी, बट ड्यू टू स्कॉलरशिप इश्यूज मुझे फिर नहीं हुआ, फैमिली वगैरह के डिसीजन के हिसाब से कि नहीं जाना चाहिए बाहर. तो फिर कॉमर्स के अंदर सबसे बेस्ट कोर्स सीए के अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कुछ और है. तो फिर मैंने डिसाइड किया सीए करने का. एंड जब डिसाइड किया करने का, तब तक जो नवंबर 19 जो मेरा अटेम्प्ट होता फर्स्ट फाउंडेशन का, वो उसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो निकल चुकी थी. तो मेरा वो अटेम्प्ट स्किप हो गया. एंड नेक्स्ट फिर मई 20th वाला जो था वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया. तो मैंने फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था फाउंडेशन का वो नवंबर 20 के अंदर दिया फर्स्ट. उसके बाद वो होपफुली एक बार में क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड सेम विद द सीए फाइनल इंटरमीडिएट, तो वो मैंने क्लियर कर लिया एक बार में. फिर अभी तो फाइनल का तो हो ही गया क्लियर. तो तो भैया आस्था, जैसे हर्षित बोल रहे हैं कि सबसे. हाँ यस. हाँ हाँ, बताओ बताओ. जैसे आस्था हर्षित बोल रहे हैं कि उनको कॉमर्स में सबसे फेवरेट कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स सीए लगता है, तो क्या आपका भी यही ओपिनियन है, I think या CA जैसे is just a आप beginning. आफ्टर. I think CA is शी just a इज जस्ट अ beginning. बिगिनिंग फॉर अस. प्रोफेशन स्टार्ट करना शी है इज ड्रीमिंग तो फॉर. इससे बिगनिंग अच्छी, मतलब इससे ज्यादा कोई अच्छी बिगनिंग नहीं हो सकती. और ज्यादा ये तो है. अपॉर्चुनिटीज ओपन हो ओके. जाती है इसके आगे. और तो आपकी मैं ऑल इंडिया रैंक आ जाए तो जस्ट फिर तो और ज्यादा. ओके. ओके. बहुत ज्यादा. सही. फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है. यस, यू आर राइट. हम्म तो
आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, और अगर जैसे जिस टाइम पे आपको ऑल इंडिया रैंक का पता चला, तो व्हाट वाज द मोशंस ऑफ योर फैमिली और रिएक्शन ऑफ योर फैमिली एट द टाइम? सो स्टार्ट विद आस्था। मेरे तो इंटर में भी AIR 17 थी, तो यस आई वाज एक्सपेक्टिंग AIR, आई वाज एमिंग फॉर इट, आई वाज वर्किंग हार्ड फॉर इट, एंड even my friends were expecting I'll get an AIR, but I was not expecting it to be in single digit. So सिंगल we were डिजिट। surprised. Yes, on the examination day, I was refreshing the site since morning, and when the notification came that the result will come on around 11 p.m., so I was frustrated at that time. Me, my father, and my mother sat on the computer table around 10:30 to refresh the site again, and I opened my result first. I was happy seeing successful and successful twice. Uh, and my father was opening it on a different computer, and he screamed "Chakka maar diya," and I was like, "Oh, ye kya hua?" And they hugged me so tightly, and this was the result day. The moment froze, and it will stay in my heart forever. टू फीलिंग फ्रॉम पेरेंट्स। हर्षित, व्हाट अबाउट यू? भैया रैंक का तो मेरी तो देखो फाउंडेशन और इंटर में थी नहीं, तो रैंक का तो ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। हाँ ये पता था कि पास तो हो जाऊंगा। मतलब जो मैंने एग्जाम्स के बाद भी मेरे मार्क्स वगैरह मैंने कैलकुलेट करे थे बिफोर रिजल्ट्स, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट ये नहीं पता था कि रैंक आ जाएगी। और मेरे को तो आस्था को तो जैसे उसने पहले भी ये फीलिंग एंजॉय कर रखी है इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 17 की, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है ये वाली फीलिंग। तो मैं तो मतलब चेयर से मतलब खड़ा होके चिल्लाने लग गया था। और पहले मैंने मार्क्स देखे थे मैंने भी, तो उसमें 430 मेरे मार्क्स आए थे। तो सक्सेसफुल सक्सेसफुल देख के तो मैं तो देखा ठीक है हो गया मेरा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। फिर उसके बाद मुझे लगा एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि 430 मार्क्स में मुझे लग रहा है कितने टफ पेपर आए थे उस हिसाब से शायद तक हो सकता है। तो फिर चेक किया तो 43 दिखा, तो फिर उसके बाद तो फिर पेरेंट्स वगैरह ने भी आके हग वगैरह किया, सब किया। मतलब बहुत सही फीलिंग होती है उस टाइम पे। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा ना, तो मुझे तो बहुत सही लगा। और एक्चुअली हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं। जैसे जब मैं भी सीए बना था, हम्म। तो एक्चुअली में पापा और मम्मी दोनों की आंखों में आंसू थे, टीयर्स ऑफ जॉय। तो वही जैसे आस्था ने बताया कि छक्का मार दिया सीधा। और आस्था की अगर जैसे 3 रैंक और आ जाती तो सीधा प्रेसिडेंट कॉल कर देते 10 मिनट पहले, 3 रैंक ऊपर आती तो बहुत ही अच्छा स्कोर किया आप लोगों ने। Thank you, Via. थैंक यू यार। तो आप मुझे बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप जर्नी, कि वो कैसी रही। सो स्टार्टिंग विद हर्षित। भैया आर्टिकलशिप जर्नी, आप भी मेरे सीनियर रह चुके हो तो आपको तो पता ही है थोड़ा बहुत तो। कालनियन कंपनी से मैंने आर्टिकलशिप की है मेरी। वहां पे हम लोग कुछ बच्चों के पास तो मतलब हमेशा ही काम रहता था। मुझे ये और भी अच्छा लगता है कि मेरी रैंक आई और मैं एक बार में क्लियर हो गया, बिकॉज मैं जो मेरे बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बैच के अंदर है, मैं उनसे क्लासेस में वैसे पीछे था थोड़ा सा। बिकॉज मेरे पास लगभग हर टाइम काम ही रहता था, रात को मतलब 11 11 2 2 बजे तक हम लोग काम करते थे, मतलब ऑफिस के अंदर इतना काम रहता था हमारे पास। तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेके थोड़ा पीछे हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो बट हाँ मैंने बहुत ट्राई किया, रात को लेट पढ़ के मेरे फास्ट ट्रैक क्लासेस ली कुछ मैंने, क्योंकि रेगुलर नहीं ले पा रहा था इसलिए, क्योंकि टाइमिंग मेरी बहुत कम बचा था मेरे पास। तो खत्म करी पहले तो क्लासेस जल्दी, फिर आर्टिकलशिप में काम वगैरह तो फुल मतलब अच्छा काम है, मतलब अच्छा काम किया बहुत अलग अलग फील्ड्स में। आईडीटी में मैंने लगभग 9 मंथ्स वर्क किया आईडीटी के अंदर, उसमें लिटिगेशन वगैरह सब इनके बारे में सीखा। और वहां पे जो सीखा ना मैंने आईडीटी के अंदर, वो मेरे जब आईडीटी का ओके। पेपर आया था ना, उसमें इतना हेल्पफुल था वो, क्योंकि लगभग सारे प्रोविजंस ऐसे दिमाग के अंदर याद रखने की जरूरत ही नहीं होती थी। मतलब आपको मतलब सब कुछ वैसे ही याद होता है अगर आप प्रैक्टिकल किसी चीज को करते हो ना। तो ये लगता है यार ये तो आपने खुद किया हुआ है, कुछ प्रोविजंस उस आउट ऑफ बॉक्स पेपर आता है ना, तो फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना वो वहां पे काम आती है आपको। नॉर्मल पेपर में तो जो आप नाइस। अगर जो भी पढ़ के गए हैं आपका, उसमें से आप कर सकते हो। बट जो अगर आउट ऑफ बॉक्स पेपर आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे लगभग सारे पेपर ही ऐसे थे। आईडीटी का हाँ थोड़ा सा ओके। कंपेयर टू अदर पेपर्स थोड़ी सी ठीक आया था आईडीटी का। बट हाँ बहुत मेरे को बहुत हेल्प मिली आईडीटी में। सेम विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक डीटी के अंदर ऑडिट वगैरह में बहुत हेल्प मिली। तो सेम आई आर्टिकलशिप में तो फुल ऑन काम किया है।
फुल ऑन काम सीखा है और सही है, सही किया। एंड आस्था, व्हाट अबाउट यू? अदर देन दिस वर्क पार्ट, क्या फन किया आपने आर्टिकलशिप में? वर्क पार्ट तो सब विद काम, जानते हैं। वर्क आल्सो। काम के साथ में पढ़ाई मैनेज करना वाज अ बिग चैलेंज। तो जैसे आर्टिकलशिप में रात को राइट। लेट तक रोक लेते थे कभी कभी, तो उसको मैनेज करने के लिए एक फिक्स शेड्यूल बना रखा था मैंने मॉर्निंग का। आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग अर्ली 6 o'clock or 5 o'clock. I have to complete at least one class before reaching ओके। office. And when you go to office after completing ओके, a class, you तो ये can waste the मॉर्निंग entire पर्सन। day. Yeah, I'm a morning person. Then you can राइट। enjoy your entire day freely. You don't have in the back of your mind going that one class I have to take after reaching home. I have to do this question. There's nothing in your mind. So you can relax. You can focus on work as well. राइट, राइट, राइट। You- That's why I denoted you a cool and calm person, because like I saw you during articleship also, that once your morning class is completed, like you are free full day, भैया you're like भैया free to जतिन में work. doing chilling with the friends and जतिन में working व्हाट also. जतिन में व्हाट अबाउट मी? Yeah, you should tell us some fun part of you during articleship, because I know, but फन audience wants to know. फन तो भैया बहुत फन किया आर्टिकलशिप में। मतलब अभी ऑफिस में जब मैं गया था ना रिजल्ट्स के बाद, तो मतलब सब ऐसे बोल रहे थे यार भैया आपकी रैंक आ गई। इतना फन किया है हम लोगों ने हमारी आर्टिकलशिप में। हम लोग और ऐसा नहीं है कि मेरी ही रैंक आई, जो मेरे जो ग्रुप के अंदर एक तो लगभग सब क्लियर हो गए। उसके साथ में जो हमारा बॉयज वाला ग्रुप है उसमें दो रैंक आई है, मेरी और मेरे एक फ्रेंड है पीयूष, उसकी ऑल इंडिया रैंक 49। तो मतलब सबके सब हो रहे हैं कि यार फन भी इतना ही करो जितना Wow. पढ़ाई करते हो। फन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और चीज है, Nice, क्योंकि nice. सीए के अंदर ऐसा है, आपका कोई कॉलेज वगैरह तो है नहीं, आपको फन यहीं पे ही है। और कालानियन कंपनी जहाँ पे हमने आर्टिकलशिप की है, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए और मिलती है क्योंकि वहां पे लगभग 200 के आसपास वहां पे आर्टिकल्स होते हैं। तो वहां पे आपको लगभग हो ही जाता है, इतने सारे आपको कॉलेज वाली वाइब थोड़ी सी आ ही जाती है। राइट। सीए के लिए आर्टिकलशिप पार्टी एक कॉलेज लाइफ का थोड़ा पार्ट बोल सकते हम्म। Yes. Jatin bhai, your video froze. हैं। Completed, and by this time your revision needs to be completed like that. So starting with Asta. Jatin bhai, your video is frozen. Can you please repeat the question? Sure. Tell me some like brief timelines by which students should complete the classes and complete the revisions, how much revisions they should do so that they can like work for AIRs basically. So that what is the trick or what is the hard work behind this? So starting with Okay, Asta. I'll tell you from AIR's perspective. Uh, First of all, you have to complete your classes on time. I took my classes in old scheme, so Okay. two subjects were less, law and costing. So I completed it a bit early. Then I have to shift in the new scheme. I didn't take classes for the new scheme specifically. I just purchased the book Okay. and just compared the book with the old scheme and did my own self comparison and Okay. completed my new course revision. First revision I did during articleship, I just read through the books. I didn't try to learn it. Second Okay. revision, Nice. you start from, we only got leave for 4.5 months. In our Oh, firm, they that's only allow leave for 4.5 we months. also. Yeah, in our firm, I said in our firm. So you have to be very strategic from the very beginning. I did my second revision for in 15 days, each subject 15 days. Then the next Okay. revision was for 5 days and decreasing it to 3 days. And then I did 1.5 days revision before exams also. Okay. I tried doing So basically, 1.5 you days. did four revisions, Yeah, four four revisions before revisions your plus exam one during the during sleep article. period of 4.5 months. During Okay. this leave period of 4.5 months. Nice. These revisions you have to do from test series perspective also. Like there is a Okay. test coming, you have to prepare for it. Not like So you you have written four test series basically. I have written 3 Okay. test series. I didn't write the last one, but I revised Okay.
for 1.5 days. I practiced for Okay. 1.5 days revision. Okay. So moving to Harshit. भैया, my classes, as I told you, it was I was not on the time. In फॉर एग्जाम्पल मेरी जो क्लासेस कंप्लीट हुई थी ना, वो हुई थी दिसंबर के अंदर, दिसंबर 23 में। उसमें मेरी दो क्लासेस पेंडिंग थी, आईडीटी की और ऑडिट की। Okay. बिकॉज मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता था ऑफिस से, कि रात को लेट तक काम रहता था। तो मैं थोड़ा सा पीछे था क्लासेस के अंदर, तो मेरी दिसंबर के अंदर मेरी Okay. दो क्लासेस बची थी, आईडीटी एंड ऑडिट। तो ऑडिट तो मैंने प्लान क्या किया था कि ऑडिट तो मैं वैसे भी, जैसे मेरी क्लासेस कंप्लीट भी हो जाती है ना बाकी, तो ऑडिट मैंने प्लान किया था जुलाई में लेने का, एग्जाम से Near to 4 exams. मंथ्स पहले। हाँ, ऑडिट की। और आईडीटी क्योंकि मेरी क्लासेस में टाइम पे नहीं था, तो मैंने उसकी फास्ट ट्रैक ली थी, तो मेरी 15 डेज के अंदर लगभग Okay. क्लासेस खत्म हो गई थी विदाउट क्वेश्चंस। फास्ट ट्रैक और रेगुलर में यही मेन डिफरेंस होता है। तो विदाउट क्वेश्चन मेरी 15 to 16 डेज के अंदर मेरी आईडीटी खत्म हो गई थी क्लासेस। तो जनवरी 15-20 तक मेरी क्लासेस लगभग हो गई थी एक्सेप्ट ऑडिट। तो ये था। Okay. फिर उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे, जैसे आस्था ने बताया, मेरे को भी 15 डेज फर्स्ट रिवीजन थे, 15 15 डेज लगे थे Okay. हर सब्जेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद 7 7 8 8 डेज लगे सबके अंदर एक्सेप्ट ऑडिट। Okay. उसके बाद फिर 3 डेज, फिर 1.5 डेज के अंदर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले। तो Yes. उस, हाँ, ऑडिट के अंदर मैंने क्या किया, ऑडिट मेरे साथ साथ में चल रही थी, क्योंकि आर्टिकल हमें ब्रेक मिला था जुलाई एंड में, तो 4.5 मंथ्स लगभग मिले थे हम लोगों को, फोर Okay. मंथ्स ही मिले थे लगभग, क्योंकि लास्ट के अंदर एमसीएस इनमें लग गया था टाइम, तो 4 मंथ्स मिले थे लगभग हमें प्रिपरेशन के लिए। Okay. तो जैसे ही मेरी But still एमसीएस you scored well. Hmm. एमसीएस जैसे ही खत्म हुई हमारी, मैंने ऑडिट की मेरी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में। तो रेगुलर क्लासेस दी थी मैंने, तो वो हुई थी रिवीजन, उसके साथ में मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का स्टार्ट कर दिया था जनवरी फरवरी से, बाकी सब्जेक्ट्स के। Okay. तो ऐसा था। उसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने एक टेस्ट सीरीज दी है मैंने, आज तक की तरह 3 टेस्ट सीरीज नहीं दी। तो अभी एक दी थी मैंने, 43 है, और 6 नहीं। बट आई ओनली गिव 1 टेस्ट सीरीज। हाँ, अभी शायद तक 3 दे देता तो क्या पता 6 है। 6 आ जाती। जस्ट जोकिंग, यस। मैंने मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी, बिकॉज भैया मेरे पास क्या है, टाइम नहीं था ना, मतलब बाकी की तरह, क्योंकि एक तो पहले ही मैं पीछे था सबसे, उसके बाद फिर मेरे पास काम भी रहता था। तो थोड़ा मैनेज करना, वैसे आस्था ने बताया कि मैनेज करना पड़ता है वर्क और उसको, पढ़ाई को, ठीक है। हाँ, लाइक बट आस्था इज अ हाँ, मैनेज मॉर्निंग गाय, करके। सो शी यूज्ड टू मैनेज इन द हम्म, मॉर्निंग इटसेल्फ। बाकी पूरे दिन कितना भी काम हाँ। हो, शी यूज्ड टू मैनेज लाइक दैट। अब यार मेरे केस में क्या रहता था कि मुझे अगर सुबह टाइम मिला तो मैं सुबह, मोस्टली तो मेरा भी सुबह ही क्लासेस लेता था मैं। बट शाम को ओके, लेट हो जाता था, तो फिर इसलिए तो सुबह ही मोस्टली क्लासेस होती थी, वरना यार मेरा राइट। तो रात को लेट नाइट तक क्लासेस होती थी। ओके। और ओके। सो टारगेट्स का है कि भैया मैंने एक टारगेट्स बना रखे थे कुछ, तो एग्जाम्स के टाइम पे भी डेली बस उन टारगेट्स को पूरा करना है। अगर वो टारगेट्स मेरे ओके, पूरे नहीं होते, तो फिर डिले होता जाता था। तो वो टारगेट्स पूरा राइट। करना पड़ते थे डेली के। राइट, सो बेसिकली वी हैव टू अचीव आवर डेली टारगेट्स, बट सबके होते नहीं है हम्म, टारगेट्स तो पूरे, बट वी हैव टू लाइक मूव ऑन, कि आज के दिन का जितना हो गया मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू करके और टारगेट्स अचीव करना है, राइट। सो हम्म, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग द 4 months leave period, 4 or 4.5, because like, doing a rough calculation of the study period took around like 5 months, because 15 days to first revision, so comes to around 3 months, then 5 days to second revision comes to around 1 month, and then 3 days comes to around 4.5 months. So roughly it is 4.5 to 5 months, right? So what were the basic problems like health issues or other which you have passed during the sleep period? Like a brief just of that. So starting with Asta. Um, I didn't get any health problems during the 4.5 months period. I didn't order any online food items or anything. My mother gave Okay, me you fruits. control yourselves. Yeah, I controlled my diet very strictly. My mother cooked me Nice, very nice food. She cooked me everything I wanted. So I didn't need to nice, order nice. anything. Uh, so no health problem as such. Not anything big. What? So far as problems are concerned, it gets a little repetitive.
the things gets a lot repetitive. After first revision, you are like, I just revised it. Now I'm doing it again. I have to do it again 2 more times. Yes, I have to actually. do it one day before exam as well. It gets repetitive and repetitive. Uh, Yes. frustration सा हो जाता है थोड़ा सा. हाँ हाँ तो हाँ कि कितना पढ़े उस हम. कितना Right. बड़े कितना पढ़े. पेपर लोड खत्म करो. ये वाला हाँ. एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा कि Right. पेपर लोड खत्म करो. थोड़ा सा Right. फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. बट ठीक है, डील करना पड़ता है उससे भी. फ्रेंड से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो. 4 महीने की बात है, उल्टी गिनती चालू कर लो. टाइम है, Nice, बीच nice. है. And that actually everyone follows. हाँ, उल्टी गिनती टाइम उल्टी गिनती चालू Right, करो. right. कितने दिन बचे बस हैं? 2 महीने बस 5 और दिन है. और पढ़ना है, बस 10 दिन और पढ़ना 5 दिन है. और पढ़ना Like है. that. दिन और Hmm. पढ़ना है, बस वही. एग्जैक्टली वही मोटिवेशन है, वही आगे लेके जाता है. Nice. Yeah. And what about you, Harshit? भैया प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे सच मेरी भी कुछ नहीं थे. और उसके अलावा फ्रेंड्स से थोड़ा बात करते थे हम लोग रोज. हमारा फिक्स था कि रोज बात करनी है 1 से 2 घंटे, सब पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद. गर्लफ्रेंड से. उससे क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है भैया माइंड. सुबह से शाम तक आप एक ही जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ना फोन चला रहे हो ना कुछ कर रहे हो. तो पूरा माइंड एक तो ब्लॉक हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा ब्लॉक, आपको कुछ और दिखता ही नहीं है. तो एक दोस्तों से बात Okay. करना, मतलब आपकी मतलब ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए जो आपसे कुछ तो बेटर हो और कुछ आपके बराबर हो. तो क्या होता है, जब Right, आपको right. पढ़ाई करने का मन ना करे तो बेटर वालों से आप बात करो. जब थोड़ा ज्यादा Right. पढ़ाई कर लो तो आप बराबर वालों से बात कर लो. तो Very nice strategy. तो रोज Good one, फिक्स good था, one. मतलब यही करते थे हम लोग फन के लिए. थोड़ा कभी कभार बैडमिंटन वगैरह खेलने चल जाते थे, तो उससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती थी. बिकॉज आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो ना और एक ही चीज करते रहते हो, तो आपकी एक तो एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन भी हो जाती है. तो आप कुछ Hmm. कुछ टाइम के लिए कुछ नई चीज करते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरी जब ये छुट्टी आई थी शुरुआत में, लास्ट 2 मंथ्स में तो कुछ नहीं किया था. थोड़ा बहुत मैंने कुकिंग वगैरह सीखी घर पे मम्मी से वगैरह. तो Nice. उस वो उससे भी थोड़ा सा, मतलब नई चीज कुछ ना कुछ तो ट्राई करने से थोड़ा बहुत आ जाता है. तो थोड़ा Nice, होता nice. है. Very good. आपने कुकिंग भी सीख ली 4 months लीव पीरियड में भी है. Nice. And what about you? Like Harshit told that how friends played an important role in his life during this journey. So what about you, Asta, that how you say that your help from your friend side for you? Actually, my best friend, can I say her name? I don't know. Uh, her Definitely, name is definitely. her name is Suhani. She's non-CA. She's an Okay. engineer. I like to communicate with people who are non-CAs during exam because Okay. So it frees your you can mind, rent frees out. up your mind. You can rent out to them. They won't judge you. They're like, you can do this. They'll always motivate you. There to listen. So like, if you talk to your CA friends, then they are like, "Bhai, mera bhi nahi hua." And I'm like, Negative instead of motivation. motivating them, they're motivating us. We have to motivate them. So Right, right. it didn't make any sense. So I used to talk to her, Suhani, the most. I stayed connected with few of my Kalani friends as well. And everybody else was busy during that 4 month period. So Right. didn't catch up much. Most importantly, I talked to my family, my father Right, and my right. brother, So guiding, friends, guiding lamp for two important them. strategies for your like friends also during this study period. Like first one as discussed by Harshit and second one as discussed by Asta. Right. So friends, like as you told me the your role of friends. So moving forward, what was the prime role of your family during this period? Because everyone's family supports a lot, but like a key point which you want to highlight that your family supported on this point, which were like very unexpected and neglected. Okay, so during the last few days before exams, my mother injured her shoulder. Okay. She the her shoulder's tissue got ruptured or something. Got Oh, the MRI done and all, but still she cooked me food. oh, it's nice. Mothers are During the like exam, that only. she cooked me food. She washed my clothes. She took care of the whole house with a broken arm, and I was like, "That's commendable," and I'm Right. really grateful Actually, for her.
for that. When we are giving exams, our whole family are giving exams. That's the concept that I understood during my journey. Right? And what about you, Ashit? Jatin bhai, in case of me, my both father and mother both are working. So थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट था मेरे लिए घर पे, जैसे कुछ कुछ चीजें खुद करनी पड़ती है बहुत सारी, जहाँ पे मतलब हेल्प कर देते हैं मदर। बट लास्ट 2 मंथ्स के अंदर मेरी मदर ने ब्रेक ले लिया था। Okay, मेरी मदर फैक्ट्री, हमारी ऑफिस जो भी है वहां पे नहीं जाती थी। बिकॉज क्योंकि मेरे को जैसे कि थोड़ी सी घर, मेरी प्लेस पे ही सब कुछ चीजें मिल जाए, खाने को सब कुछ, कुछ भी चीज चाहिए okay, मेरे को तो वहीं पे मिल जाए, और कुछ और कोई दिक्कत ना है। तो वो 2 मंथ के लिए उन्होंने भी, एक उनकी भी लीव थी एक तरीके से ऑफिस से। right. तो वो तो है ही, मतलब वो मोटिवेट करते रहते थे जब भी अगर थोड़ा सा, थोड़ा भी ऐसा लगता है ना यार, डर सा लग रहा है नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है आपको जब आप वो 4.5 महीने के लिए पढ़ते हो ना, कि यार क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मतलब नहीं हो पाएगा, इतना नहीं Right, हो रहा मेरे actually. से, नहीं हो रहा। और एक ही चीज को आप 3 बार पढ़ते हो, 4 बार पढ़ते हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है यार यही करता रहूंगा क्या मैं, मतलब कितनी बार ऐसा लगता है यार मैं Okay, कहाँ पीछे रह रहा हूँ सबसे। तो उस टाइम पे वो लोग बहुत हेल्प करते हैं आपकी, मतलब वो बोलते हैं यार हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा यही बोलते हैं, यार तेरा तो हो जाएगा। तो right, right, ऑब्वियसली right. वो तो है ही, और कोई गलत आपके बारे में सोचे ना सोचे आपको, बट आपके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली हमेशा ही सोचते हैं आपके बारे में। Definitely. So, guys, this was a like small chit chat, like your experiences during your leave period, articleship period, and all these. Like now, we'll have like a small chit chat session, and I will ask questions. And firstly, Harshit will answer first question, then Astha, like this questions would continue. So you have to like this would be sudden questions. You have to answer in a one line, right? So answer should be quick, right? So let's start. It would be sort of like energetic questions. Rapid fire. So Harshit, who's your best friend, Harshit? हार्दिक खंडेलवाल। Asta, who's your best mentor? Archit Agarwal, Your my brother. big brother. Yeah. Okay. Harshit, what's your weakness? वीकनेस, आई एम टू इमोशनल। Emotional. Okay. And Asta, whose sketch you want to do most? Who's that My person? parents. Okay. Harshit, favorite actress? एक्ट्रेस, श्रद्धा कपूर। Okay. Asta, best place visited till now? Uh, Best place, Andaman and Nicobar Islands. Okay, you recently went there. And Harshit, how many girlfriends do you have? आई टेल यू लेटर। Ask the same five. Okay. Asta, what's your weakness? I cry a lot. Okay. And Harshit, what's the best strength you have? बेस्ट, Strength. What's व्हाट, your कैन best यू रिपीट? best strength? Strength. स्ट्रेंथ, Right. आई थिंक स्ट्रेंथ इज माय फैमिली, माय ब्रदर, जो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स काम करने के लिए, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। So what he is doing, like present out of box or like that? भैया, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, एक प्लान कर रखा है कुछ वेंचर, उस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, अगर Okay, वो you are होता है doing तो। like out of box. Nice. Nice. And Asta, MBA or not in future? No answer for this right now. I would like to answer Okay. it. Okay, okay. So, guys, thank you so much. Have had a very interactive session with you all, and hope you'll get whatever you want to do in your future, either business, job, because that would differ best based on your choices. And so that was all from my side. Thanks for coming to the session. Thank you so much. I would like to say थैंक यू, one last थैंक thing. यू जतिन भैया। Jatin, I'd like थैंक to यू say one जतिन भैया, यू आर डूइंग ग्रेट। Thank you so much. So Jatin, yes, I please would ask. like to say one thing. Yes. During the articleship, you were not my senior at all. Like we weren't assigned a common assignment, but I remember that you always helped me. Even when my senior was ये तो, busy with their interviews and all, you हम्म, didn't know anything about the assignment. Still, you helped me.
thank you so much for that. भैया Thank you so much for guiding us right now.